ये आपकी मेंटल या मोरल स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। टू वेंचर, परसिवियर एंड विथस्टैंड डेंजर, फियर और डिफिकल्टी नहीं कर सकेंगे। देन आफ्टर बिल्ड योर फिजिकल स्टेमिना। ऑटोमेटिकली एक बहुत ही पतला बंदा है वो, अब दूसरी डिफिनीशन देख ले, डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। अगेन मैं लोगों से जो कहता हूं ना कि बी ए गुड ह्यूमन, बी ए गुड मुस्लिम, वो यही होते हैं, वही बंदे रिकमेंड हो जाते हैं टू बी ए लीडर। ये क्या आप में है? अगर आप में है देन यू आर द राइट मटेरियल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। जेंटलमैन, हाउ यू कैन डेवलप दिस? हर चीज अबोर कर सकता हूं, ये आपके डिटर्मिनेशन हो गई। उसके बाद हाउ टू डेवलप, ये भी जरूरी चीज है। हम जेंटलमैन डिफाइन सक्सेस ऑफ योरसेल्फ, बी क्लियर अबाउट योर गोल। आपको पता ही नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, आप कैसे डिटरमाइंड होंगे? आपको ए गुड प्लानर ग्रेस्प इंफॉर्मेशन। जो मिलिट्री प्लानिंग में आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट प्लान। तो गुड प्लानर कौन होता है? ही ग्रेस्प इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्व देम केयरफुली टू अंडरस्टैंड, देन आफ्टर he prioritizes steps of different actions। जो भी actions वो ले चाहे उन्हें across a leader always take initiative for the betterment of his self, for the betterment of his subordinates, even for the betterment of his whole country। अगर आप initiative लेने की ability, you cannot be a leader। Influencing is a tactics of a leader, most important। Influencing ability एक leader की tactics होती है। Assalamualaikum, ladies and gentlemen, cadets. Hope you and your family will be absolutely fine. Gentlemen, today's lecture is going to be very much important because this is the first lecture which is going to be available for you in history of Pakistan. Gentlemen, in this lecture we will discuss about ISSB syllabus. So frankly speaking, ISSB का कोई भी syllabus नहीं है। Ladies and gentlemen, ISSB is a test of your personality. Basically, Inter-Services Selection Board is looking for a leader who can lead men into action for Pakistan Navy, Air Force and Army. So ladies and gentlemen, listen to me. ISSB from concept. Candidates preparing for ISSB looks for guides, notes. Please understand, ISSB is not an ordinary test like you have in your matric, FSC or BS, in which you have to read from guides and notes and can pass the paper. It is a personality oriented test worked on your personalities. Guides and notes may be helpful in clearing your initial but not Inter-Services Selection Board. Gentlemen, in Inter-Services Selection Board, 3 assessors will assess you. The first one is psychologist, and the psychologist will unfold your personality traits through the inputs which you have given in the dossier through your subconscious, unconscious and conscious state of mind. And then after, group testing officer GTO will assess your personality traits through your practical abilities. And then after, your deputy president which will unfold your personality through conversation, your essay and some other test. Gentlemen, basically all the 3 selectors, their focus is on these 14 profile qualities. If you have them, then nobody can hold you back in getting recommendation. Gentlemen, the first requirement to be a military leader is courage. And let me give you a simple example. Sorry, मैं इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मैं उर्दू में समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंग्लिश में मसला होता है। करेज, बहादुरी। आप एक क्या बनने जा रहे हैं? लीडर बनने जा रहे हैं। और एग्जाम्पल सिंपल दूंगा कि एक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल का कैप्टन है, वो बहादुर नहीं है, क्या आप उसे अपना कैप्टन मानेंगे?
उसे बाल को अभी क्रिकेट चल रहे हैं इसलिए इसका एग्जांपल दे, वो बाल को फेस नहीं कर सकता, वो डरपोक है, क्या आप उसे कैप्टन मानेंगे? कभी भी नहीं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाके आपको 2 जंगें लड़नी है? अगर आप करेजियस नहीं है, देन हाउ यू कैन इंस्पायर योर सबऑर्डिनेट्स? तो करेज क्या चीज़ है? लेट मी एश्योर यू, ये लेक्चर्स आपको पाकिस्तान में और कहीं भी नहीं मिलने वाले, बिकॉज अभी तक तो न यूट्यूब में न किसी और जगह मैंने देखा है। करेज, मेंटल और मोरल स्ट्रेंथ टू वेंचर, persevere and withstand danger, fear और difficulty, ये आपकी मेंटल या मोरल स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। To venture, persevere and withstand danger, fear और difficulty, क्या आप में वो गट है किसी डेंजर को फेस करने के लिए, किसी फियर को ओवरकम करने के लिए, किसी डिफिकल्टी का सामना करने की? अब में है उर्दू में देखें, खतरे, खौफ या मुश्किल का मुकाबला करना। एक तो मुकाबला करना होता है, दूसरा साबित कदम रहना, डट के रहना और बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़हनी भी हो सकती है या अखलाकी भी हो सकती है, वो है आपकी करेज, और ये एसएसबी में देखी जाती है। अब करेज के बहुत ज़्यादा किस्म है, ठीक है, मेंटल करेज, मोरल करेज, फिजिकल करेज और दूसरे भी टाइप्स हैं। जड़में ये एक बंदा यहां से यहां तक जंप कर रहा है और इसके एटीट्यूड को देख के पता चलेगा, इसके फेस एक्सप्रेशंस, इसकी बॉडी लैंग्वेज को, कि इस बंदे में करेज है या नहीं। ये जो खतरा है, ये जो डिफिकल्टी है, उसको अबूर कर रहा है वाइल ओवरकमिंग हिज फियर। अब डेंजर इसमें है एक चीज, डिफिकल्टी इसमें है दूसरी चीज, तीसरी चीज में फियर है। क्या आप फियर को ओवरकम करके किसी भी डिफिकल्टी या डेंजर को अबूर कर पाते हैं या नहीं, वो आपकी करेज है। अब ये एक इंटरनल बिहेवियर है एक ह्यूमन का, और ये कह सकते हैं थ्रू आउट में डेवलप कैसे की जाती है वो यहाँ आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि डेवलपमेंट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहले थोड़ी बहुत समझे तो करेज एक सिंपली जो मैं आप लोगों को नसीहत करता हूँ, बी ए गुड ह्यूमन, बी ए गुड सन, बी ए गुड मुस्लिम। ऑटोमेटिकली एक मुसलमान ईमानदार होगा, उसमें ईमान होगी, वो किसी से नहीं डरेगा अल्लाह के सिवा, वो ऑटोमेटिकली करेजियस होगा। अब इसमें कोई वो करने वाली बात नहीं है। देन हाउ यू कैन डेवलप योर करेज? सबसे पहली चीज, एक्नॉलेज योर फियर। क्या आपका जो फियर है उसे जाने, सिंपली क्या आप किस चीज से डरते हैं, क्यों डरते हैं, एंड देन आफ्टर बिल्ड फेथ इन योरसेल्फ विच विल इंक्रीज योर मेंटल करेज। जब आप मेंटली करेजियस होंगे, ऑटोमेटिकली आप फिजिकल करेजियस भी शो करेंगे। इसमें एक और चीज जो मैंने आप लोगों को बताया था इस YouTube चैनल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह अलमाइटी में आपको फेथ होना चाहिए, उसके बाद खुद पर ऑटोमेटिकली विल बी करेजियस। अल्लाह पे जिस बंदे का यकीन होगा आखिरत पे, वो किसी से भी नहीं डरेगा। एंड यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव एफर्मेशन जो साइकोलॉजी के जबान में हम कहते हैं, लाइक यस आई कैन डू इट, यस इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, यस आई एम ब्रेव, यस आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग एवरीथिंग। आप करेजियस होंगे, और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जब आप बार बार करेंगे, रिपीटिशन मैंने आप लोगों को बताया था आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल बी अ करेजियस पर्सन। रिपीट करें, खुद के बारे में अच्छा सोचिए, आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, आप करेजियस भी हो जाएंगे, आपकी वर्क में एफिशिएंसी भी आएगी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। खुद के बारे में अच्छा सोचे। सेल्फ प्राइड जो एसएसबी के वेबसाइट पे भी लिखा है, आप में ये चीज होनी चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जेंटलमैन, मेक बीइंग ब्रेव अ हैबिट। आपके सामने किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी लड़की को से कोई बदतमीजी हो रहा है, यू हैव टू बी ब्रेव। इसे अपनी हैबिट बनाए। डेली लाइफ में फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें ब्रेवनेस शो करें। क्रिकेट खेल रहे हैं,
उसमें ब्रेवनेस शो करे। राह चलते कोई गलत काम हो रहा है, लीडर क्या करता है, उसमें ब्रेवरी एक्ट करता है। एंड दैट इज व्हाट इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इज सिलेक्टिंग यू। जेंटलमैन, एम्ब्रेस फेलियर, सिंपली फेलियर को गोली मारे, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस डिफिकल्ट सिचुएशंस। Those who had experienced difficult situation, they have seen to be courageous. अब फलस्तीन के बच्चों को देखें, they have faced difficult situations. That's why they are brave. एक छोटा सा बच्चा उठ खड़ा होता है SMG के सामने, सिंपली आप लोग जिसे कलिशिनकोव कहते हैं। एक छोटा सा बच्चा हमारा 1965 के वार को देखे, पाकिस्तान के लोगों ने अभी तो मस्तियां कर रहे हैं, फौज को गालियां दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशन इनमें था, तब ये करेजियस थे। टैंकों के नीचे हमारे लोगों ने अपनी शहादतें दी थी। बम, उन्होंने कहा था कि हम लाहौर में जाएंगे, बट सिविल लोगों ने भी टैंकों के नीचे खुद को लिटाया। इफ अगर ये आपके आप में ज़रूरी नहीं है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये एक बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो चीज़ें डिज़ाइन की है, नो बडी कैन प्रोवाइड यू इन होल पाकिस्तान, चाहे जितना भी सीनियर अफसर हो। आई होप, मुझे तो नहीं लग रहा, अगर आप लोगों को लग रहा है, कहीं आपने देखा होगा, देन वो अलग बात है। उसके बाद बी विद ब्रेव एंड करेजियस पीपल। ऑटोमेटिकली योर कंपनी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। जो भी आपकी कंपनी होगी, that is the reflection of your personality. Remember that. शराबियों के साथ बैठने वाला शराबी होगा, चोरों के साथ बैठने वाला चोर होगा, एजुकेटेड लोगों के साथ बैठने वाला एजुकेटेड होगा, अफसर का बेटा ज्यादातर ऑफिसर होंगे, लीडर्स के बेटे ज्यादातर लीडर्स होंगे। एक्सेप्शन केस में नहीं भी हो सकते, लेकिन 90% यही काम चलता है। जो भी आपका कंपनी होगा, That is the reflection of your personality. अगर आप बहादुर लोगों के साथ बैठेंगे, courageous लोगों के साथ बैठेंगे, आप भी courageous होंगे। There must not be any doubt here. And then after, watch motivational contents and heroes, successful people life stories. आप जब ये चीजें देखेंगे, और इसमें एक और चीज भी मैं ऐड करूं, रीडिंग अबाउट दोज पीपल, अपने सहाबा किराम के बारे में पढ़े, अपने निशान हैदर विनर्स के बारे में चीज़ें देखे पढ़े, और भी मोटिवेशनल कंटेंट हो सकते हैं जो लोग गरीबी से उठ के बहुत कुछ करेज उन्होंने अपनी लाइफ में दिखाया, उनके बारे में पढ़े देखे। ऑटोमेटिकली यू बिकेम व्हाट यू रीड, और आप वो भी बनते हैं जो आप देखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम बचपन में शाहरुख खान की वीडियोस देखते थे, वी वर एक्टिंग लाइक दैट। वाई? क्योंकि इंसान की लर्निंग थ्रू विजुअलाइजेशन और हियरिंग से होती है। डू यू नो दैट? और रियल लाइफ में भी ये होता है। तो आप जितना ज्यादा मोटिवेशनल कंटेंट देखेंगे, हीरोज के, सक्सेसफुल पीपल की स्टोरीज देखेंगे, ऑटोमेटिकली विल बी लाइक दैट। एंड देन आफ्टर, स्ट्रॉन्ग हैविंग स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, बहुत जरूरी चीज। अगर आप में कमिटमेंट नहीं होगी, आप कभी भी करेजियस नहीं बन सकते। लेट मी गिव यू ए क्लियर कट एग्जांपल ऑफ ए सुसाइड बॉम्बर। दैट ब्लडी सुसाइड बॉम्बर हैव मोर कमिटमेंट देन यू। डू यू हैव दैट कमिटमेंट? अगर आप में कमिटमेंट नहीं होगी, आप करेजियस नहीं बनेंगे। सुसाइड बॉम्बर में कुछ नहीं होता, लेकिन वो कितना करेज दिखा देता है। वो ब्लडी गलत राह में है, दैट इज अनदर कप ऑफ टी, बट करेजियस में है बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट। क्या आप में कमिटमेंट है अपनी सक्सेस के लिए? क्या आप में कमिटमेंट है कि मैं आर्मी अफसर बनूं, मैं नेवी अफसर बनूं, मैं एयरफोर्स अफसर बनूं? अगर आप में कमिटमेंट है, आप किसी भी हर्डल को अबूर कर पाएंगे। कमिटमेंट में ये चीज भी आता है कि मुझे इस मिशन को हर हाल में जीतना है, चाहे मेरी जान भी चली जाए। वो कमिटमेंट आप में होनी चाहिए। डू यू हैव दैट? अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप में नहीं है, आप SSB में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप मेहनत नहीं कर सकते, आप नहीं लड़ सकते, आप सही से लीड और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। आई होप ये चीजें आपको
पूरे पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं बताया होगा। और मैं ऐसे वैसे बातें नहीं करता, आप खुद YouTube पे देख ले, कई एकेडमी ज्वाइन कर ले, जो भी। You will never ever find these lectures. Gentlemen, then after integrity, सच्चाई सिंपली। ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स टॉपिक है इसको समझाना, लेकिन मैंने जो ये चीज बनाई है, nobody can provide you, कि आप में कितनी ज्यादा सच्चाई है। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स है, आपको रिश्वतखोर नहीं होना चाहिए। आप क्रिकेट के कैप्टन हैं, रिश्वतखोर हैं, चोर हैं और जो है सच्चे नहीं है, झूठे हैं। आप कह रहे हैं कि कल मैच होगा और कल आप मैच खेलने नहीं जा रहे, लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उनके पैड्स बैट्स चोरी कर रहे हैं, रिश्वतखोर हैं, झूठे हैं। आप में इंटीग्रिटी नहीं है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट and having strong moral values and principles, this is known as integrity। क्या आप में है? अगर आप में नहीं है, आप कहीं भी लीडर नहीं बन सकते। आपको गालियों के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। SSB ने तो आपको सिलेक्ट कर लिया, आगे लाइफ में आपके पास अथॉरिटी होगी क्योंकि आप लीडर हैं, अथॉरिटी आप में होगी। डू यू थिंक कि वहां यह तो नहीं होगा कि आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI आपके पीछे ही पड़े? इस तरह तो नहीं होगा। क्या आप में ये चीज है कि सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई भी आपको नहीं देख रहा? डू यू हैव दैट गट और नॉट? सही काम करने की, रिश्वत लेने का मौका मिला अगर हम नहीं ले रहे हैं, इट मीन्स यू हैव इंटीग्रिटी, यू आर द मैन ऑफ इंटीग्रिटी। दूसरी चीज, रमजान का महीना है, रोजा है, आपको मौका मिल गया रोजा काटने की, बहुत सख्ती है, शिद्दत गर्मी है, अगर आप रोजा नहीं जो है सिंपली काट रहे हैं, या मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, इफ यू आर नॉट ब्रेकिंग योर फास्ट देन यू आर द पर्सन हु हैज इंटीग्रिटी। अगर आपको किसी के साथ गलत करने का मौका मिल रहा है, नोबडी इज वाचिंग यू, अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप में इंटीग्रिटी है। सिंपली इंटीग्रिटी एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है, तब उसकी इज्जत होगी। अब कैसे आप इंटीग्रिटी वाले बन सकते हैं? सबसे पहली चीज, नो एंड फॉलो योर रिलीजन वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। आपके रिलीजन के वैल्यूज क्या है? डू यू नो दैट? आप मुझे पता है किस रिलीजन में लिखा है चोरी करें, किस रिलीजन में लिखा है शराब पिए, किस रिलीजन में लिखा है जिना करें, किस रिलीजन में लिखा है गलत काम करें, किसी भी में नहीं। डू यू नो? एंड देन आफ्टर फॉलोइंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आफ्टर नोइंग यू हैव टू फॉलो देम। अगर आप फॉलो करेंगे, आप में इंटीग्रिटी आएगी। एंड देन आफ्टर ब्रीड डिसिप्लिन इन योर रिलीजन। अपने रिलीजन में अगर आप अपने अल्लाह, अपनी गॉड के साथ आप वफादार नहीं है, आप सच्चे नहीं है, आप कल को जाके आर्मी के साथ क्या सच्चे होंगे? ऑटोमेटिकली यू विल नॉट बी लाइक दैट। So, be disciplined in your religion is very much important. Then after gentlemen, expressing gratitude for other, ये बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों से कहा, अगर आप शुक्रगुजार बंदे होंगे, आप सच्चे होंगे, ठीक है, अपने टीचर्स के साथ शुक्रगुजार हैं, तो आप सच्चाई पेश करेंगे, सच्चाई से काम लेंगे। जब आप किसी से शुक्रगुजार ही नहीं है, तो आप सच्चाई में काम नहीं करेंगे। एंड दैट इज द रियलिटी। वैल्यूइंग ऑनेस्टी एंड ओपननेस। ऑनेस्टी को वैल्यू दे। एक मुसलमान अच्छे इंसान की पहचान ऑनेस्टी होती है। अगर उसको आप वैल्यू देंगे, तब आप में इंटीग्रिटी आएंगे। सिर्फ ऑनेस्टी ये है, इंटीग्रिटी ये है कहने से नहीं होगा, उसको वैल्यू देना पड़ता है। एंड देन आफ्टर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शन, गुड और बैड। जो भी आप काम करें, जैसे आपने गलती की, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक लीडर की पहचान है। लीडर ऑलवेज एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली आप झूठ बोलेंगे। एग्जांपल दे देता हूं, आपने क्रिकेट में कोई गलती कर दी, फिर बाहर जाके आप झूठ बोल रहे हैं, यार मैंने तो नहीं की थी, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग। अगर आप अपने अच्छे एक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे, आप सच्चे होंगे।
ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है बट मैं एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टूडिंग। जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बार बार जेंटलमैन कहता हूँ क्योंकि मेरा जेंटलमैन के साथ ज़्यादा वो होता है इंटरेक्शन। सो जेंटलमैन, रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू नो मैटर वेयर आर यू। इम्तिहान में बैठे हैं, पहले अपनी रिस्पेक्ट करें, उसके बाद दूसरों की। गलती करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, इट मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर रिलीजन, इट मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द पीपल विच आर अराउंड यू। जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, आप में ये इंटीग्रिटी आएगी। अंडरस्टूड? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। जेंटलमैन, the next point is that helping those in need without sacrificing your health, your own health. ठीक है, listen to me gentlemen, जो बंदा helping होता है वो हमेशा सच्चा होगा, and that is the reality. Even आपको अगर आप में ये कट होगी तो sacrifice your life, क्योंकि आगे आपको करना भी पड़ेगा। जैसे मैंने 1965 की वार की एग्जांपल दी, आप में इंटीग्रिटी होगी। अंडरस्टूड? ये सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दे आर इंटरलिंक्ड। मैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा हूं जेंटलमैन, बिकॉज ISSB इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ISSB is not a test of your WAT, SRT, obstacles. They are required to unfold your personality traits. ISSB सेंटेंस मेकिंग का तो टेस्ट नहीं है ना, ISSB पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इसलिए मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे रिसर्च करके मेरे सर के बाल खत्म हो गए, ये लेक्चर्स बना रहा हूँ। Nobody can provide you these types of lectures. ये मुझसे लिख के ले लें, और आप लोगों के साथ इतना कोई मुखलिस नहीं होगा कि 2 घंटे 1 घंटे का लेक्चर बनाए, वो मैं ही हूँ। अंडरस्टूड? क्योंकि सारे अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, हमारे बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स भी गोली मारे चले उन्हें। लिसन टू मी नाउ, एग्जामिन योर मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स। ये मैंने आपको बताया कि अच्छे कामों को आप एग्जामिन करें। व्हाट आर योर मॉरल एंड एथिक्स एंड वेयर डू यू कम्स फ्रॉम। आपके मुआशरे में कोई एथिक्स तो होंगे, कोई मॉरल वैल्यूज तो होंगे, उन्हें एग्जामिन करें, उसके बाद उन पे अमल करें। ऑटोमेटिकली विल बी कैरेक्टरफुल पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी भी होगी। बी ए रोल मॉडल ऑफ इंटीग्रिटी फॉर अदर्स, बहुत ही जरूरी चीज, क्योंकि आप लीडर बनने जा रहे हैं, और लीडर क्या होता है, उसके अंदर इंटीग्रिटी होता है, वो एक रोल मॉडल होता है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने हमें ये नहीं बताया कि सिर्फ चोरी मत करो, वो खुद चोरी नहीं करता था। ही वॉज रोल मॉडल। अभी तक लोग उसको इसलिए फॉलो कर रहे हैं। आप चोर हैं और दूसरों को चोरी ना कहने का बोल रहे हैं, क्या आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे? कभी भी नहीं। बी ए रोल मॉडल ऑफ इंटीग्रिटी। कोई भी गलत काम ना करे, खुद पहले साफ हो, तब लोग आपको फॉलो करेंगे। देन आफ्टर स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। ऑटोमेटिकली जो आपकी बिलीव है उनके साथ स्टैंड करें। आप इंटीग्रिटी के रोल मॉडल है, आप हेल्पिंग हैं, आप रिस्पेक्टिंग हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ग्रेटिट्यूड वाले बंदे हैं, आप अपनी मजहब में डिसिप्लिन हैं, आप अपने वैल्यूज को जानते हैं, उनके साथ स्टैंड करें। ऑटोमेटिकली आप में इंटीग्रिटी आएगी। मैं आपसे कह रहा हूं, दीज ऑल थिंग्स दे आर इंटरलिंक्ड। देन आफ्टर जेंटलमैन, कीपिंग योर एग्रीमेंट्स। वादे जो आप लोगों से के साथ करते हैं वो पूरा करें। देन आफ्टर जेंटलमैन, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल ऑफ इंटीग्रिटी। वही बात, जो भी आपका कंपनी होगा एंड आपकी पर्सनैलिटी उसकी रिफ्लेक्शन है, एंड दैट इज द रियलिटी। आप सच्चे लोगों के साथ बैठेंगे, आप भी सच्चे होंगे, आप झूठों के साथ बैठेंगे, आप भी झूठे होंगे। देयर मस्ट नॉट बी एनी डाउट हियर। बी ऑनेस्ट, लॉयल, सैक्रिफायर एंड सेल्फलेस। अगर आप ये मुकम्मल निचोड़ है, अगर आप में ये चीज होगी, आप में ये इंटीग्रिटी होगी। आई होप you have understood
the second officer-like quality or leadership quality. Then after gentlemen, practical ability. Leaders हमेशा practical होते हैं, वो ख्याली पलाव वाले बंदे नहीं होते। अब इस बंदे को देखे, इस काम में भी प्रैक्टिकल है, लोगों के साथ मिलने में भी प्रैक्टिकल है, आइडियाज़ में भी प्रैक्टिकल है, काम में भी प्रैक्टिकल है, सब कुछ। ख्याली पलाव वाले बंदे लीडर नहीं बन सकते। क्रिकेट का कैप्टन है, ये कौन है हमारा, मुझे इस क्रिकेट की टीम का कैप्टन का भी नाम पता नहीं है, सॉरी, बट जो भी है, अगर वो ख्याली पलाव है, मैं कल इतने रन करूँगा, हम इस तरह हार आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या उसे लीडर मानेंगे? क्या पूरा पाकिस्तान उसे कैप्टन मानेगा? नहीं, उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या आप में है? अगर आप में है, then you are the right material for the armed forces. Gentlemen, how you can develop this practical ability? मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, दर्द हो रहा है, ठीक है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि 28 मिनट बोलना कोई ईजी काम नहीं होता। How to develop practical ability? Taking training courses आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग कोर्स का मतलब ये नहीं कि कोचिंग एकेडमी ज्वाइन कर ले, ठीक है, कोई मुआशरे में कोई काम हो रहा है उसमें जाए, वो काम कर ले, अपने ख्यालात है उन्हें प्रैक्टिकली लाइफ में कर ले। यू कैन इम्प्रूव प्रैक्टिकल स्किल्स बाय टेकिंग ट्रेनिंग कोर्सेज रिलेवेंट टू योर फील्ड, ठीक है, GTOs के टास्क नहीं, जो भी आपका फील्ड है, पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप जो है ट्रेनिंग इसमें हिस्सा ले ले। ट्रेनिंग बहुत सारी जगहों में होते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जहाँ भी होती है आप वहाँ चले जाए। फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग ले ले, ठीक है, ख्याली पलाव से दूर रहेंगे, तो ये चीज़। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल्स आर सेल्फलेस एंड लाइफ सेविंग स्किल्स, ठीक है, ये मिलिट्री की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्किल्स अगर आप में होंगे, आप अपनी भी मदद कर पाएंगे, दूसरों के लाइफ भी आप वो करेंगे। एंड लेसन्स दैट यू कैन लर्न ऑफन ईजिली टीच टू अदर एंड प्रैक्टिस एवरी डे टू प्रिपेयर प्रोटेक्ट यूर एंड अदर्स हेल्थ। ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ के अलावा जो भी गोल है, अचीवमेंट है, आप प्रैक्टिकल स्किल्स के ज़रिए उन्हें अचीव कर सकते हैं। आप दूसरों को समझा भी सकते हैं, खुद अगर प्रैक्टिकल है आप लर्न भी कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस एवरी डे, अगर आप क्रिकेटर हैं तो उसकी जो है ट्रेनिंग ले लें, वगैरह ले लें, उस पर काम करें, दूसरों को सिखाएं। दूसरों को सिखाना भी प्रैक्टिकल काम है ना, सिर्फ ख्यालाती पालाव नहीं। उसके बाद मोस्ट प्रैक्टिकल डोंट रिक्वायर्ड स्पेशल सर्टिफिकेशन और फॉर्मल ट्रेनिंग टू परफॉर्म, बट यू डू नीड एजुकेशन। अगर आप में किसी चीज़ की एजुकेशन होगी तब आप प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। Then after, ladies and gentlemen, take part in different events, sports and functions. मुआशरे में कोई बेहतरी काम हो रहा है, स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, स्पोर्ट्स का कोई हिस्सा टूर्नामेंट हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, उनमें हिस्सा ले लें। आप प्रैक्टिकल होंगे, अंडरस्टूड? ये आप लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, आप में मुआशरे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगे, तो उनमें हिस्सा ले लें, आप प्रैक्टिकल बंदा बन जाएंगे। फॉलो यूर प्लान एंड स्टार्ट एक्शन। जो भी आपने ख्याली पलाव पकाया है उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दे, ऑटोमेटिकली यू विल बी अ प्रैक्टिकल पर्सन। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डूइंग मोर प्रैक्टिकल वर्क्स। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, स्कूल में, कॉलेज में, सर ये फंक्शन मैं कराता हूँ, अब इनिशिएटिव भी आएगी, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। प्रैक्टिकली वर्क जितना आप करेंगे उतना आप प्रैक्टिकल बन जाएंगे। स्टार्ट वर्किंग विद योर टीम। टीम के साथ जब आप काम करेंगे तब आप ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा काम प्रैक्टिकल एबिलिटीज को एनहेंस करेगा। लाइक टीचर्स, फ्रेंड्स, जो भी आपके कंपनी है उनके साथ आप मिलजुल के काम करें। ये जो टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लिख के अपने साथ और जो है रखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबडी कैन प्रोवाइड यू दीज टाइप्स ऑफ टिप्स। व्हाई डू यू नीड प्रैक्टिकल स्किल्स? ये भी जरूरी है। इट हेल्प टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आपसे कहा जाता है कि एसएसबी को डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए। यस, अगर आप में प्रैक्टिकल एबिलिटी होगी तब आप डिसीजन ले पाएंगे। एंड एसेस सिचुएशन बेस्ड ऑन प्रॉपर कंसिडरेशन। जो मैंने आप लोगों को कमांड टास्क का बताया था, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि लीडर सिचुएशनली एक्ट करता है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है, आप सिचुएशनली एक्ट नहीं कर पाएंगे। इनिशिएटिव रख के GTOs टास्क में बैठने से अच्छा है आप जो है एक प्रैक्टिकल इंसान बने, तब आपको डिसीजन मेकिंग की आर्ट आएगी, सिचुएशनली एक्ट करने की आर्ट आएगी। देन आफ्टर, डिटर्मिनेशन, बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वालिटी। हार न मानने वाला बंदा
जिसे हम डिटरमाइंड पर्सन कहते हैं। नेवर गिव अप वाला बंदा डिटरमाइंड बंदा होता है, कभी भी हार न मानने वाला। ये एक सक्सेसफुल बंदे की पहचान है। डिटर्मिनेशन कैन बी अ डिसीजन और द फोकस यू नीड टू गेट समथिंग डन। इस पत्थर को हटाना है, चाहे जो भी हो जाए। मुझे कैप्टन बनना है, चाहे जो भी हो जाए। मैं जो भी फेलियर फेस करूं, मैं जो कुछ भी करूं, मुझे अपनी टीम को जितवाना है। अपनी सक्सेस के लिए आप जो भी इक़दाम उठाते हैं विदाउट गिविंग अप, दैट इज योर डिटर्मिनेशन। मैं ये करके ही रहूंगा, मुझ में ये सब कुछ एबिलिटीज है, मैं हर चीज बोर कर सकता हूं। ये आपकी डिटर्मिनेशन हो गई। उसके बाद हाउ टू डेवलप, ये भी जरूरी चीज है। हम जेंटलमैन डिफाइन सक्सेस ऑफ योरसेल्फ, बी क्लियर अबाउट योर गोल। आपको पता ही नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, आप कैसे डिटरमाइंड होंगे? आपको पता ही नहीं है कि मुझे ये ऑपरेशन जीतना है, आप कैसे डिटरमाइंड होंगे? यू विल नेवर एवर बी डिस्कवर व्हाट यू वांट। You want to be a captain, navy, army, air force officer? अगर आपको वो पता है सबसे पहली चीज, तब आप डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे, आप में वो क्वालिटी आएगी। अंडरस्टूड? आप क्रिकेट का कैप्टन हैं, आपको चाहिए सक्सेस में जीतना। अगर वो आप ये जीतना डिस्कवर नहीं करेंगे, तब आप कैसे डिटरमाइंड होंगे? कैन यू टेल मी? नो। फर्स्ट डिफाइन सक्सेस ऑफ योरसेल्फ, देन आफ्टर सेट पर्सनल, एकेडमिक एंड कैरियर गोल्स। उसके लिए गोल्स रखें कि मुझे ये काम करने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। जैसे आप इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं, मुझे हर रोज 50 क्वेश्चन याद करने हैं। ये नहीं कि एक दिन 50 क्वेश्चन याद करके दूसरे दिन 0। इसका मतलब आप में डिटर्मिनेशन नहीं है। अगर आप दूसरे दिन भी 50 याद कर रहे हैं, तीसरे दिन भी 50 याद कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी आप में है, 5वें दिन आप 100 याद कर रहे हैं, इट मीन्स आप हार न मानने वाले बंदे हैं। आप रनिंग कर रहे हैं, आपने कहा मैं एक दिन 1 किलोमीटर भागूंगा, कल आप 0.56 पे नहीं आएंगे। आप में अगर इंप्रूवमेंट आ रही है, इट मीन्स यू आर डिटरमाइंड। पर्सनल जो भी आपके गोल से, वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट करें और फिर उन पे काम करें। ठीक है? बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। अगेन वही चीज, डिफाइन कर ली, डिस्कवर कर ली, अब क्लियर हो जाए। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, मुझे मूवीज डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे ये दोस्त डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको अवॉइड करें और क्लियर हो जाए। जब आप क्लियर होंगे, तब आप डिटर्मिनेशन के साथ काम कर पाएंगे। अगर आपके ख्यालात इधर उधर है, तब आप डिटरमाइंड नहीं है। कीप योर एक्सपेक्टेशंस हाई। सेल्फ स्टीम, अगर आप में सेल्फ स्टीम नहीं है, देन हाउ यू आर थिंकिंग दैट यू विल बी a practical, a determined person, a confident person? The answer is very no. So you must have to expect high. खुद के बारे में अच्छा सोचें। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है आर्मी चीफ बनने की, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तब आप उसी लेवल पे डिटरमाइंड होंगे। तब आपकी या आपकी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ इनिशियल को पास करके एसएसबी में नॉट रिकमेंड होने की है, तब आप उस लेवल पे डिटरमाइंड होंगे। इंसान की कामयाबी उसकी सोच से जाहिर होती है और कोई भी चीज नहीं है। अंडरस्टूड? देन आफ्टर अंडरस्टैंड योर एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज। आप अपनी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज को जाने। आप नहीं जानेंगे तब आप डिटरमाइंड नहीं होंगे। प्ले टू योर स्ट्रेंथ, सिंपली इंप्रूव योर स्ट्रेंथ। जो मैंने बताया 50 एकेडमिक क्वेश्चन, 100, 200, 1 किलोमीटर रनिंग, 2 किलोमीटर रनिंग, 3 किलोमीटर रनिंग। अंडरस्टूड? इंप्रूव योर सेल्फ, इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, डेवलप स्ट्रेटजीज टू मीट गोल। जो भी आपका सक्सेस है उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाना है, प्लानिंग कर ले। जब आप प्लानिंग करेंगे, ये भी प्लानिंग है कि मैं 50 वक्त दूंगा, 50 उस वक्त इस टाइम सबक पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा।
आप डिटरमाइंड होंगे। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड बी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। ये वही चीज है हाई सेल्फ स्टीम। ये समझाने की जरूरत नहीं है, अभी तक मैं समझा 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 के थक गया हूं। वर्क हार्ड, परसिवियर एंड बी फ्लेक्सिबल। ऑटोमेटिकली हार्ड वर्किंग बंदा ही डिटरमाइंड हो सकता है, फ्लेक्सिबल बंदा ही डिटरमाइंड हो सकता है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अटेम्प्ट टू मेक यू वांट्स एंड डिजायर रियल, यू आर ऑलमोस्ट देयर। अंडरस्टूड? ऐसे ख्यालात बनाए कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, तब आप अपनी गोल की तरफ जा रहे हैं। आपको लगेगा कि आप यू आर ऑलमोस्ट देयर। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वही चीजें आप में डिटर्मिनेशन डेवलप करेंगे। अंडरस्टूड? आपकी सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगी। मेंटेनिंग एन एक्सरसाइज रूटीन टू टेक विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। ये एक्सरसाइज पे आ गया, बस छोड़े। सेल्फ डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व्स मेनी एटीट्यूड। सबसे जरूरी चीज ये डिटर्मिनेशन, ये डिटरमाइंड होना भी एक बंदे की एटीट्यूड होती है। जस्ट लाइक कॉन्फिडेंस, इट इज एन एटीट्यूड ऑन योर एबिलिटीज एंड स्किल्स। और डिटर्मिनेशन भी आपकी मेनी एटीट्यूड्स का निचोड़ होता है। एंड एबिलिटीज इंक्लूडिंग सेल्फ अवेयरनेस, assertiveness, creativity and self pride, problem solving, self advocacy skills। ये चीजें काफी टेक्निकल होते जा रहे हैं। ये इसलिए आपको पाकिस्तान में कोई भी नहीं बता रहा। अंडरस्टूड? दीज थिंग्स आर ऑलमोस्ट वेरी टेक्निकल। मैं एग्जांपल से बहुत ही बिकॉज आई एम नेचुरल बॉर्न टीचर, इसमें भी मुझे फख्र है, अल्लाह ने मुझे कुदरती एक टीचर बनाया है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं अपने हद तक कि आप लोगों को पढ़ाऊं। आप में एटीट्यूड होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। एबिलिटीज आप में होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, असर्टिवनेस, क्रिएटिविटी, प्राइड। ये चीजें होंगे तब आप डिटरमाइंड होंगे। देयर मस्ट नॉट बी एनी डाउट। टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ यू मस्ट बी एबल टू सेट गोल्स, evaluate options, make choices, then work hard to achieve your goals. That's it. ये निचोड़ में लास्ट में आप लोगों को दे रहा हूं जो भी बातें मैंने की है। Do you have this gut to be a determined person or not? Then after, responsibility is very much important. Even मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, दूसरों की जानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में होगी। क्रिकेट का कैप्टन है, आपने अपने पैसे उसके साथ जमा किए हैं, वो आपके पैसे खा रहा है, इररिस्पॉन्सिबल, नॉन सीरियस। क्या आप उसे क्रिकेट का कैप्टन मानेंगे, क्रिकेट का लीडर? द आंसर इज नो। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दूसरों की जानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगी? इवन आगे आपके लाइफ में आपको एटम बम को भी संभालना होगा, पूरे न्यूक्लियर कंट्री को संभालना होगा, क्योंकि आपको सिलेक्ट किया जा रहा है एज ए लीडर। डू यू हैव हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक लीडर के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स यू डू थिंग्स यू आर सपोज टू डू। आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना चाहिए? सही से सबक पढ़ना चाहिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, खुद को क्लीन रखना चाहिए, घर के कामों में अपने माँ बाप की हेल्प करना चाहिए, अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहिए। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, बी ए गुड ह्यूमन, बी ए गुड मुस्लिम। वो ये चीजें हैं। एज ए मुस्लिम, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? एज ए सन, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? एज ए स्टूडेंट, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? नो देम एंड वर्क ऑन देम। आप में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाए, कोई चीज गलत जगह पे रखा है उसे सीधे जगह पे रखे। गेट खुला हुआ है, गेट को बंद कर दे। घर के अखराजात लाने हैं, घर के अखराजात लाए। बहुत सारे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनैलिटी। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक देखें कि मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उन पर वर्क करें। यू विल बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंडरस्टूड? एक और टिप में आपको दूं, बिकॉज यू आर एसएसबी एस्पायरेंट्स, नॉट ब्रेकिंग एनी रूल इज कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एसएसबी में ये ख्याल रखें,
not breaking any rule is considered as responsibility. Understood? Then how you can develop this responsibility? Know your responsibilities as a son, daughter, as a student, as a brother, sister, as a Muslim, as a good citizen, as a good human being, and follow them with integrity. Again, I am telling you that all the officer-like qualities, they are interlinked. ये चीज आप में होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर आप बच्चे हैं, अच्छे सिटीजन हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग है, आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता किसी भी फील्ड में। आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। सॉरी। बी अकाउंटेबल फॉर योरसेल्फ, बी पंक्चुअल। अगर आप पंक्चुअल होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। मुझे इस वक्त ये काम करना है, उस वक्त ये काम करना है, उस वक्त ये काम करना है। फुटबॉल मैच 2:30 को है, तो आप 2:30 को वहां पहुंच जाएंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गेट ऑर्गेनाइज, बी ऑर्गेनाइज। चीजों को तरतीब से करने की कोशिश करें। क्वाइट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, इसको खत्म कर दें। कीप योर इमोशंस इन कंट्रोल वाइल वर्क, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। जो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है वो एसएसबी में देखी जाती है। ये एक अफसर की दूसरी क्वालिटी है। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, तब आप रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। ये नहीं कि क्रिकेट का मैच 2:30 में है, दोस्त ने कुछ कहा गलत, बस उसको 2-3 गालियां दी और चले गए। हाँ, डू यू थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल? नो, मैं जो भी लिख रहा हूं उसे प्रूव भी कर रहा हूं। फिर ये नहीं कि ये 2 टके के लोग मुझे फिर क्रिटिसाइज कर ले, इनकी औकात नहीं है, ठीक है। एंड देन आफ्टर स्टॉप विनिंग, इसको छोड़िए टेक्निकल टर्म में, ठीक है। बी विलिंग टू वर्क एंड अर्न समवन ट्रस्ट। आपके अब्बू आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा अच्छा बेटा बने, तो उसके लिए विल करें, सर मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाऊंगा। एंड अर्न समवन ट्रस्ट, अगर आप दूसरों का ट्रस्ट अर्न करेंगे, जीतेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल बंदे बन जाएंगे। अब में डेवलप होगी वो चीज, अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पसंद करेंगे, आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। These are technical terms, but I am trying to teach you in a better way. Be dependable, consistent. Understood? इसमें आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेबल भी बने, ठीक है। किसी काम को करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। एक्सरसाइज सेल्फ डिसिप्लिन अगेन। Nobody can beat a disciplined person. अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। बी हेल्पफुल टू अदर्स, ऑटोमेटिकली आप दूसरों की हेल्प करेंगे, तब आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगेन बता रहा हूं, these all officer like qualities, they are interlinked. एंड उनका निचोड़ ये है कि बी ए गुड ह्यूमन, बी ए गुड सिटीजन, बी ए गुड सन, बी ए गुड डॉटर, बी ए गुड student. Automatically you will possess all the officer like qualities and you will get recommendation by inter-services selection board. Then after 6th, planning ability, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप प्लान नहीं कर सकते you cannot be a leader, क्योंकि आपको आगे सक्सेसफुल बनना है। आपको लीडर इसलिए सेलेक्ट किया जा रहा है कि आप अपनी टीम को जितवाए, आप ऑपरेशन में कामयाब हो, आप दूसरों की जानें बचाएं, आप मुल्क को इंप्रूव करें। अगर आप में प्लानिंग एबिलिटी नहीं है, then how you can think you can do that? You cannot do that. The ability to manage self or others, the ability to manage yourself or others, and to manage any goal भी हो सकता है, and resources including time and surrounding circumstances to reach a specific goal. आपकी जो मिलिट्री प्लानिंग होती है उसमें आपको टाइम को मैनेज करना पड़ता है, रिसोर्सेज को देखना पड़ता है, हिडन रिसोर्सेज निकालना पड़ता है। इसलिए देखी जा रही है कि आप में वो एबिलिटी है कि आप पहले खुद को मैनेज करें। जैसे आपकी कमांड टास्क, कैन यू मैनेज योरसेल्फ इन कमांड टास्क? कैन यू मैनेज अदर्स?
Can you manage the resources which you have, like planks, drum, and bully, including time, because they are giving you a limited time. आपको 50 मिनट तो नहीं दिए जा रहे, 2-3 घंटे तो नहीं दिए जा रहे. And surrounding circumstances to reach a specific goal. वो है आपकी प्लानिंग एबिलिटी. वो SSB में देखी जाती है डिफरेंट टास्क में. डू यू हैव दैट इन यूर सेल्फ और नॉट? बहुत ही जरूरी क्वालिटी है. एक कप्तान है, नीचे उसके सूबेदार NCOs JCOs से बता रहे हैं सर ये करते हैं, सर वो करते हैं, जो है इस नाव पर टीम को यहाँ डिप्लॉय करते हैं ऑपरेशन के लिए. कप्तान सामने जा रहा है और सजेशन कोई और दे रहे हैं. डू यू थिंक यू आर अ लीडर? आपकी पूरी लीडरशिप कंप्रोमाइज होगी. इसीलिए प्लानिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आगे आप ही प्लान करेंगे, नोबडी विल प्लान फॉर यू. देन आफ्टर हाउ टू डेवलप दिस प्लानिंग एबिलिटी? आफ्टर अवेकिंग इन मॉर्निंग, प्लान योर डे. व्हाट आई विल डू and start action accordingly to your plan with discipline. सुबह उठे, एक चार्ट बनाए कि मैं आज ये काम कर लूंगा. इधर एक्शन लिखे, इसके सामने टाइम लिखे. अब प्लानिंग एबिलिटी आएगी, अब ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आएगी. उनको करते करते टिक करते जाए. मैंने नमाज पढ़ी, MCQs याद किए, WAT की प्रैक्टिस की, बुक्स पढ़ लिए, फुटबॉल पढ़ लिए. ये आपकी प्लानिंग. और टाइम भी वहां पे मेंशन करें, मुझे इस टाइम ये करना है, वो करना है. और डिसिप्लिन के साथ आपकी प्लानिंग एबिलिटी दिन ब दिन इनहेंस होती जाएगी. और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, दिस कैन टेक मिनिमम 3 months. ये एकदम सर रहमान के एक लेक्चर देने से नहीं होगा, ज्यादा टाइम लेंगे. इफ यू हैव यू विल गेट रिकमेंडेशन. इफ यू डोंट हैव देन वर्क ऑन दीज थिंग्स. 3 महीने से 1 साल, इवन 18 साल भी लगते हैं टू डेवलप योर पर्सनैलिटी. सो कर लियोगे WAT SRT प्रैक्टिस करने से ये चीजें जाने आपको फायदा होगा. प्लान एन इवेंट, प्लान योर सक्सेस, प्लान अ टूर, प्लान अ गेम. स्टार्ट प्लानिंग एवरीथिंग. जो भी आपका चीजें उससे प्लान करें. जैसे एक फंक्शन आप प्लान कर रहे हैं, एक इवेंट, आप कहेंगे कि 10 बंदे आ रहे हैं, 3 घंटे की करनी है, 2 मिनट 2 घंटे स्पीच होगी, 10 मिनट नात होगा, इस टाइम ये होगा, इस टाइम ये होगा, कुर्सी इस तरह अरेंज करेंगे, ऑफिसर इस टाइम आएंगे, गेस्ट इस टाइम आएंगे. वही आपकी प्लानिंग होती है. प्लान योर सक्सेस, प्लान अ टूर, प्लान अ गेम. इतने खिलाड़ी हैं, ये बंदे हैं, डिफेंडर को यहाँ करना है, उसको वहां करना है. वही तो प्लानिंग होती है, बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, तरतीब से. विदाउट ऑर्गेनाइजिंग यू कैन नॉट make an effective plan for your success. Understood? Commit your goal on a paper. Again, which is when you have unfulfilled goal, they bounce around your mind, disturbing our thoughts and taking up mental space. अगर आप अपने गोल को पेपर पे कमेंट नहीं करेंगे, किसी जगह एक सेट क्लियरिटी नहीं होगी, तब आप डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, डिस्टर्ब भी होंगे, आप सही इफेक्टिव एक्शंस नहीं ले पाएंगे. तो इस चीज से दूर रहे. कमिट टू योर गोल ऑन ए पेपर. अंडरस्टूड? एंड प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी आप प्रैक्टिस कर लें. फाइंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन. अगर आप में मोटिवेशन नहीं होगी, आपको प्लान करने का मन नहीं करेगा, आपको एक्शंस लेने का मन नहीं करेगा. हमें प्लानिंग एबिलिटी कैसे आएगी? यही आएगी ना, वर्क विद अदर्स. अगर आप दूसरों के साथ काम करेंगे, आप प्लानिंग एबिलिटी आप प्लान करेंगे. कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसमें प्लानिंग एबिलिटी होगी, आप भी प्लान करेंगे उनके साथ. टीम में प्लानिंग होगी. अंडरस्टूड? अ गुड प्लानर ग्रेस्प इंफॉर्मेशन. जो मिलिट्री प्लानिंग में आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट प्लान. तो गुड प्लानर कौन होता है? ही ग्रेस्प इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्व देम केयरफुली टू अंडरस्टैंड, देन आफ्टर he prioritizes steps of different actions. जो भी एक्शंस वो ले लेता है, उन्हें प्रायोरिटाइज करेगा कि मुझे पहले ये करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये. In an organized way with good knowledge. And second, plan to execute his plan in time
मिलिट्री प्लानिंग की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, कमांड टास्क वगैरह की। दीज आर टेक्निकल बट यू आर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है ये लेक्चर, आप इन्हें गूगल ट्रांसलेटर पे वो कर सकते हैं। ही आल्सो डिस्कवर हिडन रिसोर्सेस। गुड प्लानर ये होता है, ही आल्सो नो their distribution of actions and materials distribution। सॉरी मैं भी हैरान, ये कौन सा नया बला आ गया। गुड प्लानर जानता है, सॉरी इसमें वो हुआ है, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्शंस एंड मटेरियल्स etc and also he know art of working with others as a leader। बस वही गुड प्लानर होता है। I hope you are understood and I also believe that nobody can teach you like this। फिर भी आप अपने फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फीडबैक देंगे उतना मैं जान सकूंगा कि मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ या मैं खुद को पता नहीं कुछ और समझ रहा हूँ। उसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपने कोई ऐसा लीडर देखा है एकदम रोता है, एकदम किसी के बात पे गुस्सा करता है, एकदम मैच छोड़ के चला जाता है, क्या आप उसे क्रिकेट का कैप्टन मानेंगे? द आंसर इज वेरी नो। आपको लीडर सेलेक्ट किया जा रहा है, इवन आपको गोली भी लगेगी, उस टाइम क्या आप हंसते हैं या नहीं? दैट इज योर इमोशनल स्टेबिलिटी। इसमें सेल्फ कंट्रोल नाम की भी एक चीज आ जाती है कि आप खुद को सेल्फ अगर कंट्रोल होंगे ऑटोमेटिकली आप इमोशनली स्टेबल होंगे। सेल्फ कंट्रोलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप में है देन आप इमोशनली स्टेबल बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आप में गुस्सा नहीं है। गुस्सा आना ये इंसान, ये जानवरों को भी आता है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना इमोशनल स्टेबिलिटी है। हमारे यहाँ आप लोगों को सिखाते हैं ना कि गुस्सा ना करें। क्या आप कप्तान हैं, आपकी एक बंदे को कोई शहीद करके चला जा रहा है, आप उस वक्त क्या गुस्सा नहीं करेंगे? आप करेंगे। किसी को कंट्रोल में लाना है, कोई बदतमीजी कर रहा है, क्या आप गुस्सा नहीं करेंगे? आप गुस्सा करेंगे। बट सेल्फ कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। कंट्रोलिंग योर इमोशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इमोशनली स्टेबिलिटी enables the person to develop an integrated and balanced way of perceiving the problem of life। बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है एक लीडर के लिए। और ये साइंस पढ़े अगर आप में ये चीजें हैं, आप इमोशनली अनस्टेबल है। सो सिंपल चीज ये है कि सेल्फ कंट्रोल आप में होनी चाहिए। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है देन यस यू आर एन इमोशनली स्टेबल पर्सन। आपका मुंह कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये नहीं होना चाहिए। अगर कंट्रोल के साथ ये हो रहे हैं फॉर बेनिफिट्स देन आप इमोशनली स्टेबल है। देन हाउ यू कैन डेवलप दिस इमोशनल स्टेबिलिटी? अ मैन हु इज द मास्टर ऑफ पेशेंस इज अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। जिसमें बर्दाश्त की सलाहियत होगी, जिस आदमी में, ही इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। ये कोटेशन है। स्टार्ट प्रेयर्स एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज। ज्यादा से ज्यादा आप तहम्मुल वाले काम करें, ठहराव वाले काम करें। इसलिए सुन्नत का तरीका है ना कि आपको गुस्सा है तो बैठ जाए, उसके बाद भी फिर ना हो लेट जाए, उसके बाद फिर ना हो पानी पी ले। वो आपकी मेडिटेशन हो गई। वही चीजें प्रेयर्स, आप अल्लाह को याद करें कि अल्लाह मुझे हौसला दे दे, ऑटोमेटिकली आपकी इमोशंस डाउन होंगे। अलाउ योरसेल्फ टू फील in order to become emotionally stable। you must allow first to feel कि भाई मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ दूसरे पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मैं गुस्सा करके किसी को छुरी ना मार दूँ। अब में अगर फीलिंग होगी, फील करेंगे, तब आप खुद को स्टेबल बना पाएंगे। ये टेक्निकल टर्म्स है, मैं फिर भी एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ अगेन एंड अगेन। किसी चीज़ की समझ नहीं आई, फीडबैक के साथ कमेंट में पूछ ले, नो इशू इन दैट, ठीक है। उसमें कोई भी आपको मसला नहीं होगा। रिफ्लेक्ट ऑन योर इमोशन, छोड़े इसको, थोड़ी टेक्निकल टर्म में, जिसको समझ आ गई है गुड, नहीं आ गई है देख ले। फोकस ऑन योर फिजिकल सेंसेशन, इसको भी छोड़ें, जिसको समझ आ गई है गुड, जिसको नहीं आई छोड़े। सेट बाउंड्रीज जरूरी है हर किसी के लिए कि बाउंड्रीज अगर आपके नहीं है आप इमोशनली स्टेबल नहीं बन सकते।
बाउंड्री सेट करें और उसके मुताबिक उसके दायरे में रह के, अहाते में रह के एक्शंस ले लें। आप इमोशनली स्टेबल होंगे। आपका बाउंड्री है, एक कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, वो आपकी बाउंड्री है, तो उस टाइम आप गुस्सा करेंगे। आपकी बाउंड्री है नहीं रोना क्रिकेट मैच लॉस करके, ठीक है। आपकी बाउंड्री है कि लोग जो है मुझ पे वो करेंगे, मैं नहीं रोऊंगा चाहे जो भी हो जाए। आप इमोशनली स्टेबल बन जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से समझा नहीं सकता। कंसल्ट डॉक्टर अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल है, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करिए, जो भी रिलेवेंट डॉक्टर है। इफ यू हैव यूपीटी, ये एक बीमारी भी हो सकती है। अगर आप में वो बीमारी है, इन चीजों को करने के अलावा फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है, तब आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपको सही मशवरा देगा, तब आप इमोशनली स्टेबल बन जाएंगे। सबसे जरूरी चीज, a man who is a master of patience is a master of everything। बस बर्दाश्त की सलाहियत अपने लाए, आप इमोशनली स्टेबल बन जाएंगे। उसके बाद, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इमोशनल स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर इमोशनली स्टेबल नहीं है, कल को आपके पास अथॉरिटी आएगी, आप अथॉरिटी का गलत फायदा इस्तेमाल करेंगे, इमोशनली स्टेबल करके बन के किसी की जान को नुकसान पहुंचाएंगे। अंडरस्टूड? अगर आप कंट्रोल में ले रहे हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल, ओके, तब आप स्टेबल है। देन आफ्टर इनिशिएटिव, एक लीडर की बहुत बड़ी पहचान, बिकॉज ए लीडर ऑलवेज टेक इनिशिएटिव फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज सेल्फ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, इवन फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज होल कंट्री। अगर आप में इनिशिएटिव लेने की सलाहियत नहीं है, पहला कदम लेने की सलाहियत नहीं है, आप लीडर नहीं बन सकते। एक क्रिकेट का कैप्टन है, अंडरस्टूड, वो क्या कर रहा है, एक क्रिकेट का कैप्टन है, वो ये स्टेप नहीं ले सकता कि कल हम मैच खेलेंगे इसके साथ, वो ये स्टेप नहीं ले सकता कि हम इसको बॉल देंगे, तो वो कैसे लीडर बन सकता है? कभी भी नहीं। द एबिलिटी टू एसेस एंड इनिशिएट थिंग्स इंडिपेंडेंटली, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज। ये बंदा इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाता। आप अपने स्कूल कॉलेज में कुछ बंदे देखे होंगे, सर ये करते हैं ना, सर वो करते हैं ना, सर मैं ये करूंगा, सर मैं वो करूंगा, हाथ उठाते हैं, वो इनिशिएटिव लेने वाले बंदे होते हैं। और जरूरी ये है कि यू हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, जो भी है। उसके बाद द पावर और अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एंड टेक चार्ज बिफोर अदर डू, ये एक लीडर की पहचान होती है। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इस इमेजेस के साथ ही आप समझ गए होंगे। हाउ यू कैन डेवलप दिस इनिशिएटिव? डेवलप a career plan. Research has shown that who have long-term career plan are more likely to take initiative. Long term अगर आपकी प्लान होगी, आप ज्यादा इनिशिएटिव लेंगे। There is nothing, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। Build self confidence. आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, हाई सेल्फ स्टीम नहीं है, अगर आप में सेल्फ प्राइड नहीं है, आप कैसे इनिशिएटिव ले पाएंगे? सर मैं फुटबॉल टीम की क़यादत करूंगा, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कभी भी नहीं बता पाएंगे। अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, तब आप इनिशिएटिव ले पाएंगे। स्पोर्ट अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिले उन्हें पहले फाइंड करें, स्पॉट करें, उसके बाद आप इनिशिएटिव ले पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज आपको नजर नहीं आ रहे, हाउ यू कैन टेक इनिशिएटिव? नो, यू हैव टू स्पॉट अपॉर्चुनिटीज, और पोटेंशियल इंप्रूवमेंट जो है उनको भी स्पॉट करें, ठीक है? तब आप किसी चीज के लिए इनिशिएटिव ले पाएंगे ना, जब आपको इंप्रूवमेंट नजर आएंगे कि मुझ में इस चीज में ये इंप्रूवमेंट करनी है, सर इस खिलाड़ी को यहां पे खड़ा करना है, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज और इंप्रूवमेंट्स को सपोर्ट करें, तब आप इनिशिएटिव लेंगे। सेंस चेक योर आइडियाज, अपने आइडियाज को चेक करें, खामोश ना बैठे। डेवलप रेशनल परसिस्टेंस, छोड़े इसे। स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर है, अब एसएसबी को चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप करेंगे, आप नई नई इनिशिएटिव लेंगे। स्टार्ट विलिंग टू वर्क हार्ड, ये स्ट्रॉन्ग विल ही जो है जो आपको इनिशिएटिव लेने पे मजबूर करता है। अंडरस्टूड? बाय टेकिंग इनिशिएटिव, सक्सेसफुल लीडर्स
डोंट वेट फॉर समवन टू टेल देम व्हाट टू डू। वो पहले ही खड़ा करते हैं, सर इस ऑपरेशन को मैं अंजाम दूंगा। थिंक ऑन देयर फीट एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एज प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। अंडरस्टूड? वो प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव वाले नहीं होते। अपीयर फ्लेक्सिबल, कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। वही लोग तो इनिशिएटिव ले सकते हैं जो फ्लेक्सिबल हो, कॉन्फिडेंट हो, करेजियस हो। हेल्प देयर टीम ऑर्गेनाइजेशन टू इनोवेट, प्रोग्रेस, टू ओवरकम कंपटीशन। समझ आ गई? निचोड़ मैंने नीचे दे दी। इनिशिएटिव इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये एक दो दिन का खेल नहीं है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इट टेक्स मच मोर टाइम। ठीक है, सर रहमान आपको बेवकूफ बनाने वाला नहीं है, आपको सही चीजें सिखाने वाला है। किसी ने आज तक, मैं समझ रहा हूं आप लोगों के लिए, किसी ने भी ये काम नहीं किए होंगे पूरे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज द ओनली लेक्चर विच इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर यू इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। दैट इज द रियलिटी। ओके, मैं ऐसी वैसी बातें करने वाला ना था, ना हूं, ना रहूंगा। ओके उसके बाद सोशल रिलेशन। जो बंदा सोशल रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकता वो आर्मी अफसर नहीं बन सकता। यू मस्ट हैव टू नो हाउ टू इंटरेक्ट विद योर फैमिली, टीचर्स, family friends, outsiders, neighbors, strangers, other professional people। आपको पता होना चाहिए कि मुझे सोशल अडॉप्टेबिलिटी है, ठीक है? जब आप अडॉप्ट होंगे तब आप रिलेशन पैदा कर पाएंगे। एक लीडर की पहचान होती है, ही नोज कि मैं सिपाही से किस तरह बात करूं, हवलदार से किस तरह बात करूं, अपनी फैमिली से किस तरह बात करूं। ये नहीं होगा जो फ्रेंड गपशप आप फ्रेंड्स के साथ लगाते हैं वो जाके आप अपने अब्बू के साथ लगाएंगे। अंडरस्टूड? कैन यू, उसके बाद कैन यू मिक्स अप विद डिफरेंट पीपल? अगर आप में ये गट है तब आप में सोशल रिलेशन है। यू कैन मेंटेन सोशल रिलेशनशिप इफ यू कैन मिक्स अप, इफ यू आर सोशली अडॉप्टेबल, देन यू कैन मेंटेन सोशल रिलेशंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए लीडर। अंडरस्टूड? ये तो एक बंदा है, इसका रिलेशन इस सिपाही के साथ भी है, हवलदार के साथ भी है। क्रिकेट की एग्जांपल दे देता हूं। क्रिकेट का एक कैप्टन है, लीडर है, इसका अच्छा रिलेशन कोच के साथ भी है, अपने फास्ट बॉलर के साथ भी है, बैट्समैन के साथ भी है, सीईओ के साथ भी है, जो भी है छोड़े, पाकिस्तान के लोगों के साथ भी है, फैंस के साथ भी है। यही तो होता है लीडर। इसलिए मैं कहता हूं दीज आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए लीडर। ये जो भी क्वालिटीज है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। Then after gentlemen, how you can develop this social relation? Make yourself available. Building close relationship take time. Understood? एक दिन में तो आप नहीं होगा। आपके जो बड़े लोग हैं उनके साथ आप उठना बैठना शुरू करें, अपने प्रिंसिपल्स, अपने टीचर्स, ज्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे, आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। एक्टिव दे रहा हूँ फॉर इंटरव्यू। स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली, रिलेटिव्स एंड टीचर्स। जब आप लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट होंगे तब आप में सोशल रिलेशंस डेवलप होंगे। अटेंड सोशल एक्टिविटीज, जो भी आपके मुआशरे में सोशल एक्टिविटीज हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो कल्चरल इवेंट्स ज्यादा होते हैं, आपके वहाँ तो नहीं होंगे, होंगे भी, तो उन्हें अटेंड करें। तब आप जानते होंगे कि किसके साथ किस तरह बात करनी है। लीडर वही होता है, लीडर इस तरह नहीं होता हर किसी के साथ बक बक करें। डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके ठीक नहीं होंगे, देन हाउ यू कैन से यू कैन डेवलप सोशल रिलेशन। आप सोशल रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? दूसरे लोग आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डेवलप सोशल रिलेशन। बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्टवर्दी हो जाए। अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं है, लोग आपके साथ रिलेशन क्यों मेंटेन करेंगे? आपके सिपाही भी आपकी बातें नहीं मानेंगे। तो ट्रस्ट बिल्ड करें, अच्छे अच्छे काम करें, लोगों के साथ इंटीग्रिटी के साथ काम करें। अगेन अंडरस्टूड? अगेन कह रहा हूं कि these all officer like qualities, they are interlinked. They are reflecting a good son, a good human, a good citizen, a good student. Simply show up for others. छोड़े इसको। Start knowing how to talk with friends, how to talk with teachers, how to talk elders according to your moral values and principles. Again वही चीज। ओके, ये चीजें आपको तमीज अगर पता होंगे तब आप तमीजदार होंगे। तो इनको बुक्स पढ़े, जो भी चीजें आप करें अपने माँ बाप से सीखे। बी फ्रेंडली विद अदर्स, ठीक है,
दूसरों के साथ फ्रेंडली रहे, तब आप सोशल रिलेशन इनहेंस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तकरीबन 1 घंटा 9 मिनट का लेक्चर बन चुका है, फिर भी आगे बहुत चीज़ें हैं। थक गया हूँ, ठीक है, बोल बोल के नॉन स्टॉप 1 घंटा 10 मिनट बोलना बहुत बड़ी बात है। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़। कैन यू इन्फ्लुएंस अदर्स? कैन यू इंस्पायर अदर्स? अगर आप में ये चीज़ नहीं है, आप लीडर नहीं बन सकते। एक क्रिकेट का कैप्टन है, लीडर है, वो एक बंदे को कह रहा है आप बॉलिंग करें, अगर वो नहीं कर रहा, क्या आप इसे मानेंगे लीडर? कभी भी नहीं। तो हाउ यू कैन थिंक इफ यू डोंट इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, यू कैन नॉट बी ए लीडर। इन्फ्लुएंसिंग इज अ टैक्टिस ऑफ ए लीडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी एक लीडर की टैक्टिस होती है। द एबिलिटी टू अफेक्ट बिहेवियर ऑफ अदर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। लीवरेजिंग की टैक्टिस टू इन्वॉल्व, कनेक्ट एंड इंस्पायर देम। अंडरस्टूड? यह है इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। आप दूसरों को अगर इंप्रेस कर रहे हैं, दूसरे आपकी बातों को मान रहे हैं, यू हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। आप अपने टीचर्स को इंस्पायर कर रहे हैं, छोटे बच्चों को कर रहे हैं, अपने टीममेट्स को कर रहे हैं, आप लीडर हैं। सिंपली इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी को समझाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतनी बेहतरीन डिफिनीशन बना के मैंने बताई, बट रिमेंबर दैट इज ए टैक्टिस ऑफ ए लीडर। उसके बाद हाउ यू कैन डेवलप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी? रीड गुड बुक्स, बिल्ड कनेक्शन। रीड गुड बुक से क्या होगा? वॉच गुड थिंग्स, इससे आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। नॉलेज इज पावर। एक बंदा है ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहा है, लेक्चरिंग में बात कर रहा है, नॉलेज उसमें नहीं है, फिजिकली वो ठीक नहीं है, शक्ल उसका ठीक नहीं है, वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा? कभी भी नहीं। जब आप में नॉलेज होगी तब आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। बिल्ड कनेक्शन, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखें। कनेक्शन जब आपके अच्छे होंगे, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे होंगे, तब आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। आपके दोस्त आपकी बात जरूर मानेंगे। Understood? So you must have to build strong connections with other peoples if you want to develop this influencing ability. If you want to influence others, take the time to make one connections with people across the surrounding. Thrive for excellence बहुत जरूरी, तब आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे जब आप एक्सीलेंस के लिए थ्राइव कर पाएंगे। Be open minded and flexible. कंजर्वेटिव माइंड का बंदा कभी भी लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ओपन माइंडेड बंदा, फ्लेक्सिबल बंदा दूसरों को इंस्पायर कर पाएगा। तो आप ये बने, तब आप लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। अप्रिशिएट अदर्स बहुत ही जरूरी। अगर आप दूसरों को हीरो ऑलवेज गिव क्रेडिट्स टू अदर्स, जो मैंने आप लोगों को बताया था इसी चैनल पे, वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अगर आप में ये चीज़ है, then yes you are the right material for the armed forces। अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट करें, आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। शाबाश बेटा, आप अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, शाबाश बेटा, तब वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। ये नहीं कि 2-3 गालियाँ दे वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। नो, बी ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट बहुत ही ज़्यादा। ऑब्जर्वेशन भी एक लीडर की टैक्टिस होती है। अगर आप ऑब्जर्वर होंगे कि इससे मुझे किस तरह से बात करनी है, सिपाही से सख्ती से बात करनी है या नरमी से, ऑब्जर्व जब आप करेंगे तब आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस इज मस्ट अगेन एंड अगेन। कॉन्फिडेंस जो मैं आपको बता रहा हूं, दीज ऑल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दे आर इंटरलिंक्ड। कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है, नॉलेज आप में नहीं है, लोग आपसे कैसे इंस्पायर होंगे? देन सर इज वेरी नो। बी अ गुड लिसनर। जब आप दूसरों की बातों को रिस्पेक्ट देंगे, लिसनिंग करेंगे, तब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। नो देमसेल्फ। चेक योर बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। अगर आप की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल लूज है, टोन आपका बिल्कुल लो है, बहुत आराम आवाज से बात कर रहे हैं, जैसे इस तरह, हाउ टू डेवलप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, आप इंस्पायर होंगे? देन देयर इज नो। अब मुझसे क्यों इंस्पायर हो रहे हैं आप? मेरी बात, मेरे बोलने का स्टाइल बोल्ड है। देन आफ्टर यू आर इंस्पायरिंग फ्रॉम मी। आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, तब लोग आपसे इंस्पायर होंगे, तब लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। गरजदार आवाज से बात करें, बॉडी में आपकी एनर्जी होनी चाहिए, आप में एंथुसियाज्म होना चाहिए, तब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स।
कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके ठीक होंगे तब आप लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, वही बी एन अट्रैक्टिव पर्सन। अट्रैक्टिव पर्सन ही दूसरों को इंस्पायर कर पाएगा। एक छोटा बच्चा क्रिकेट का कैप्टन है, वो क्या दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएगा? नो, अट्रैक्टिव पर्सन की ही बात लोग मानेंगे। ये रियलिटी है। वो कैसा होगा? बोल्ड होगा, जेंटलमैन होगा, खूबसूरत होगा, कॉन्फिडेंट होगा, विलिंग टू पार्टिसिपेट में होगी, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ बिलीव होगी, वो हमेशा दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। एंड दैट इज द रियलिटी। अंडरस्टूड? इसमें कोई चीज मेरे ख्याल में छुपी ही नहीं है। देन आफ्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अफसर की क्वालिटी है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमारे मुआशरे में एक मिथ है कि जो सामने जाके बातें करता है वही कॉन्फिडेंट होता है। द आंसर इज नो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन एटीट्यूड ऑन योर एबिलिटीज एंड स्किल्स। ये एक एटीट्यूड है। अब क्रिकेट की एग्जांपल ले रहा हूं। एक क्रिकेट का लीडर है, कैप्टन है, उसको बैटिंग करने का तरीका नहीं आता, उसमें स्किल्स नहीं है अच्छी बॉलिंग करने की, अच्छी बैटिंग करने की, लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बहुत सारे स्किल्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर क्रिकेट। उसमें एबिलिटीज नहीं है। हाउ ही कैन बी कॉन्फिडेंट? आप शुएब अख्तर के बाल को फेस कर सकते हैं? मैंने जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली है, क्या मैं कॉन्फिडेंटली शुएब अख्तर के सामने खड़ा हो सकता हूं? द आंसर इज वेरी नो, बिकॉज आई डोंट हैव दोज स्किल्स एंड एबिलिटीज। अंडरस्टूड? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब मुझ में एबिलिटीज और स्किल्स होंगे तब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। अब ये बंदा इसको पार कर रहा है, इसमें वो एबिलिटीज और स्किल्स है। एक एबिलिटी है कि इसमें बैलेंस है, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अंडरस्टूड? ही नोज द नॉलेज। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादातर इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होता है। अब इंटरव्यू के लिए क्या एबिलिटीज और स्किल चाहिए? सबसे पहली चीज इंग्लिश, दूसरी चीज नॉलेज, तीसरी चीज कैरेक्टर। मैं एसएसबी की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपकी आउटलुक, इसके बाद बहुत सारे और क्वालिटीज भी आ सकते हैं। हाँ, सोशल एबिलिटी, सोशल रिलेशन। अब देख, एक बंदे का इंग्लिश ठीक नहीं है, इंग्लिश उसे नहीं आता, नॉलेज उसके पास नहीं है, कैरेक्टर उसका ठीक नहीं है, आउटलुक उसका ठीक नहीं है, सोशल नहीं है, वो कैसे कॉन्फिडेंट होगा? कभी भी नहीं। क्या चप्पल पहन के आउटलुक की बात कर रहा हूं, बालों को गंजा करके, जो भी है, क्या आप एक कर्नल के सामने जा सकते हैं? द आंसर इज वेरी नो। इंग्लिश आपका ठीक नहीं है, बोलने का तरीका नहीं आता, कैसे कॉन्फिडेंट होंगे? नॉलेज आपके पास नहीं होंगे। सो दैट इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, इंप्रूव योर एबिलिटीज एंड स्किल्स रिलेटेड टू योर रेलेवेंट फील्ड। अंडरस्टूड? कमांड टास्क को करने के लिए अलग एटीट्यूड चाहिए होगी, अलग एबिलिटीज और स्किल चाहिए। इंटरव्यू की मैं वैसे के लिए बात कर रहा हूं। इंग्लिश पर फोकस करें, इंग्लिश पर आता है, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। नॉलेज आपका ठीक है, हर सवाल का जवाब को आता है, नॉलेज अपने बारे में है, हॉबीज के बारे में है, फैमिली के बारे में है, जनरल नॉलेज का है मुकम्मल। आप कॉन्फिडेंट होंगे, कैरेक्टर आपका ठीक है। अब अगर झूठे से आप झूठ के बारे में पूछेंगे, वो उसमें उसकी कॉन्फिडेंस लॉस हो जाएगी। अब आपका कैरेक्टर ठीक है, आउटलुक आपका ठीक है, बेहतरीन इंटरेस्टिंग है, हेयर कट सही है, सब कुछ खूबसूरत है, आप सोशल है, आप बड़ों से बात करना जानते हैं, ऑटोमेटिकली यू विल बी ए कॉन्फिडेंट पर्सन। देयर मस्ट नॉट बी एनी डाउट। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाउ यू कैन डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस बता दो दी, फिर भी बता रहा हूं। ए पर्सन, एक बंदा है, हु इज गुड लुकिंग, खूबसूरत है। हमारे एक्ट्रेस और एक्टर्स को देख के वो क्यों कॉन्फिडेंट होते हैं? बिकॉज दे आर लुकिंग गुड। इसमें भी एक साइकोलॉजी है। विद गुड कैरेक्टर, with integrity, with high self-esteem, with self-belief, with good knowledge, with good communication skills, with good language, English, with more skills, more abilities, automatically you'll be confident. There must not be any doubt. Understood? अगर आप में ये सारी चीजें नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। Other ways to improve: low self-esteem. Low self-esteem आपके लिए कॉन्फिडेंट ही है। Sorry. Recognize what you are at. We are all good something, whether it is cooking, singing, doing puzzle, playing games.
रिकॉग्नाइज आप किस में अच्छे हैं। उस चीज को जब आप करेंगे आप कॉन्फिडेंट होंगे दूसरी चीजों के लिए भी। बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स जरूरी है, अगर आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होंगे तब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बी काइंड ऑफ योर सेल्फ, अंडरस्टूड। लर्न टू बी असर्टिव, स्टार्ट सेइंग नो टू योर सेल्फ, ठीक है। नो का मतलब ये नहीं कि आप जो है दूसरों को नो कहेंगे, नो का मतलब है मैं ये नहीं कर सकता, या आप में नहीं होने चाहिए, मैं ये कर सकता हूं, तब आप में कॉन्फिडेंस होगी। गिव योर सेल्फ ए चैलेंज, खुद को चैलेंज दे। लेक्चर दे रहे हैं, चैलेंज दे के यार आई एम चैलेंजिंग, बाहर जाके मैं ऐसा लेक्चर दूंगा कि जीटीयू हैरान होगा, ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्फिडेंस आसमानों में जाएगी। तो दीज थिंग्स दे विल इंप्रूव यू। आई होप नोबडी कैन प्रोवाइड यू दीज टाइप्स ऑफ लेक्चर्स इन होल पाकिस्तान, आई एम गारंटिंग यू। मेरे सिखाने का तरीका ये है, तब मेरे तकरीबन अभी कुछ महीनों में ही 9 स्टूडेंट्स रिकमेंड हो गए बिकॉज ऑफ दिस सिंसियरिटी, दिस हार्ड वर्क। ओके, तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है इस पर कांटेक्ट करके अपनी इनिशियल एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं। इन पाकिस्तान बेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, कोई भी आपको 10,000 से 70,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इंतहाई मामूली फीस इनिशियल की 999 और एसएसबी के 2499 फीस लेके मैं आप लोगों की तैयारी करवाता हूँ। आई थिंक ये फीस जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ कुछ भी नहीं है, इसमें आपके एमबीज के खर्चे, गूगल मीट क्लासेस, पावर पॉइंट, ये सब कुछ खर्च होते हैं। घंटे घंटों का लेक्चर अगर आपको सेंड कर दें तो वो एमबीज में गरीब बंदा वो एफर्ट तो नहीं कर सकता, ठीक है। हकीकत बात, रियल बात है। एंड्योरेंस, फिजिकल एंड्योरेंस, जिस्मानी बर्दाश्त आप में कितना है। Endurance refer to your body physical capability to sustain an exercise for extended period. Understood? अगर आप में जिस्मानी बर्दाश्त है तब आप फिजिकली एंड्योरेंस वाले बंदे हैं, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपको ये चीज़ें फेस करने होंगे। हाउ टू डेवलप फिजिकल एंड्योरेंस? फिजिकल एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली दे विल डेवलप फिजिकल स्टेमिना। आप प्लेइंग स्पोर्ट्स खेले, फुटबॉल हो गए, क्रिकेट जो भी है, आप में फिजिकली बर्दाश्त आएगी। ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग जो भी है, मूविंग, ये जो भी आपके स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, फिजिकल स्पोर्ट्स, जब आप खेलेंगे आपके मसल स्ट्रेंथ मजबूत होंगे, आप में बर्दाश्त आएगी। डांसिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, सबका फोकस फिजिकल पे है। खुद के बारे में एक्सरसाइज करें, डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज, दे विल इंप्रूव योर फिजिकल एंड्योरेंस। जिम, पुशअप्स, पुलअप्स, डिफरेंट एक्सरसाइज, दे विल इंप्रूव योर फिजिकल एंड्योरेंस। जिस्मानी बर्दाश्त है, जिस्मानी सलाहियत है ये, ठीक है। फिजिकल टच वाला नहीं है, ये दूसरी चीज है। ऑटोमेटिकली जब आप फिजिकली ज्यादा फिट होंगे तब हम में फिजिकल एबिलिटीज होंगे ना, तो देयर मस्ट नॉट बी एनी डाउट, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, आर यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ, are you aware of your family, are you aware of your surrounding, are you aware of your place, are you aware of your college, are you aware of your teachers, are you aware of your friends, are you aware of your country, are you aware of your world, are you aware of your universe? ये एक लीडर की पहचान होती है, वो ख्वाब गफलत में सोया हुआ नहीं होता। क्रिकेट का कैप्टन है आप, आपको पता नहीं है किसको बैटिंग देनी है, किसको क्या बैट किस तरह है, क्रिकेट के रूल्स पता नहीं है, स्टेडियम पता नहीं है, कोच से आप अवेयर नहीं है। हाउ यू कैन बी ए लीडर? यू कैन नॉट बी ए लीडर। एसएसबी में इसलिए आपके हॉबीज के बारे में पूछे जाते हैं, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी प्लेस के बारे में। अंडरस्टूड? ये एक सीक्रेट आपको पता चल गया होगा। इंटरव्यू में ये चीजें क्यों पूछते हैं? बिकॉज दे वांट टू चेक योर जनरली अवेयरनेस। ये आप में है। हाउ यू कैन डेवलप दिस जनरल अवेयरनेस? लेडीज एंड जेंटलमैन, you can develop, start knowing about yourself, your hobbies, interests, merits, demerits, your height, education, teachers, family, friends, subjects, your like, dislikes, your surrounding, your neighbors, your place, your country, even world तक। जितना ज़्यादा आप में जनरली अवेयरनेस होगा तब आप लीडर बनने के काबिल है। रीड बुक्स, watch videos according to your interest about the things which are associated to your personality. Understood? ये उर्दू में तशरीह करने की कोई चीज़ नहीं है, आसान है। रीड हु इज हु, व्हाट इज व्हाट बुक, ये आपकी जनरल अवेयरनेस को इंप्रूव करेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर है। गेन नॉलेज एज मच एज यू कैन। तो जनरल अवेयरनेस एक लीडर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थक गया हूँ, देखे 1 घंटा 26 मिनट का लेक्चर। लास्ट क्वालिटी एक्सप्रेशंस, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक लीडर की पहचान होती है। इसमें एक और चीज़ भी आती है, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है,
वो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली प्रिसाइजली टू द पॉइंट विद गुड बॉडी लैंग्वेज इज नोन एज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। लीडर की ये पहचान होती है कि वो को पावर के साथ एक्सप्रेस करता है। आपके रिटन एक्सप्रेशन जो है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, एसेस है, उसमें आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन देखी जाती है। अंडरस्टूड कि छोटे अल्फाज में आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, एक ही जुमले में बहुत सारी बातें बता पा रहे हैं या नहीं। स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली प्रिसाइजली, ये बता दें। अंडरस्टूड, ये आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब दूसरा एक्सप्रेशन है सेल्फ कंट्रोल। अब ये देख, इस बंदे के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, फेस एक्सप्रेशंस। अब आप ऑब्स्टिकल्स कर रहे हैं, आपका मुंह तो नहीं थकता ना, आपकी फेस अगर इस तरह हो रही है ऑब्स्टिकल करके, इस तरह जो भी है, मुंह लटकाए हुए हैं, तब आपको अब एक्सप्रेशन पे कंट्रोल नहीं है, आप लीडर नहीं बन सकते। आपको जब गोली लगेगी आप रोएंगे, कप्तान खुद रो रहा है, कैन ही बी ए लीडर? नो, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। डेवलप पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड, बी नेचुरल, बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर ले, चॉइस फॉर गुड एंड पावरफुल वर्ड्स, ठीक है। वॉच एंड रीड अबाउट लीडर्स, मैं डॉन न्यूज़पेपर को रेफर करता हूँ, डॉन के ओपिनियन पेजेस पढ़े, ठीक है। आप में पावर ऑफ एक्सप्रेशन आप में डेवलप होगी। डेवलप सेल्फ नॉलेज, participate in conversation, talk with people and discuss with them, automatically will be a person with power of expression. Gentlemen, we are the only academy of Pakistan offering you Pakistan best preparation platform, जिसमें आपको लेक्चर्स, आपको स्टडी नोट्स, आपको रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के वॉइसेस, गाइडलाइंस और इस तरह का टीचर आपके पास है। अरमान अली से कोई मैं नहीं समझता कोई बेहतर मुझसे पढ़ा सकता है, क्योंकि मुझ में भी सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, सिर्फ आप में नहीं। वी आर ऑफरिंग फुल कोर्स विथ ओनली रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप ये इनिशियल की जैसी फीस है 999, अगर आप ये जमा करेंगे आपकी सेटिस्फैक्ट्री प्रिपरेशन तक आपकी तैयारी की जाएगी। कोई भी मंथली चार्ज फीस नहीं, नोट्स, लेक्चर्स चार्ज कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड? आपका टेस्ट होने तक आपकी तैयारी की जाएगी। SSB क्रैक कोर्स, ये फीस है क्योंकि इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्यों कर रहा हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर लें। आपके 1 घंटे के लेक्चर जैसे 2-3 GB का लेक्चर बना, 3 GB 20 के MB के खर्चे मुझे कौन देगा? दूसरे अकेडमीज आपसे इवन 75,000 रुपये लेके कोई मुझे बताए किसी भी, आई एम चैलेंजिंग टू होल पाकिस्तान, किसी ने ये इस तरह तैयारी अगर आप लोग की तो मेरा नाम बदल देना। और सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के सामने हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट जेंटलमैन, दैट विल इम्प्रूव मी। और जो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक एट लास्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बी अ गुड सन, बी अ गुड ह्यूमन, लव योर कंट्री, लव योर आर्म्ड फोर्सेस। नोबडी कैन हेल्प यू बैक इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।